ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 18/5/2021 બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने. શિવ બાબા શું છે? કાલોના કાળ મને મહાકાલ છે અને આપણી પાસે કેમ આવ્યા છે, આવીને શું કરે છે? તો કાળ પર જીત પ્રાપ્ત કરાવે છે. કાળમાંના અકાલે મૃત્યુ. તો બાબા આવીને અમર કથા સંભળાવે છે અને અમર કથા દ્વારા અમરપુરીના માલિક બનાવે છે. અને કાલ ઉપર જીત પ્રાપ્ત કરવા માટે બાબાએ એક મંત્ર આપ્યો છે. તો કયો મંત્ર છે? મન મના ભવ કે મંત્ર સે હી તુમ કાલ પર જીત પાએંગે. મન મના ભવમાંના પોતાને આત્મા સમજી મન બુદ્ધિથી શિવ બાબાને યાદ કરવા, એ છે મન મના ભવની સ્થિતિ. તો બાબા કહે છે આ સ્થિતિ હશે તો જે કાલ છે માના અકાલે મૃત્યુ, એની ઉપર જીત પ્રાપ્ત કરી શકશો અને અમરપુરીના માલિક બની શકશો. પ્રશ્ન: रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? આપણે કોણ છે? રૂહાની યાત્રી. કઈ યાત્રા કરી રહ્યા છે? પરમધામની યાત્રા કરી રહ્યા છે. તો બાબા રૂહાની બાપ છે, માના આત્માઓના પિતા છે. તો બાબા આત્માઓને કઈ શિક્ષા આપે છે? તો ઉત્તર: હે રૂહાની યાત્રી. બાબા શું કહીને પુકારે છે? હે રૂહાની યાત્રી, તુમ દેહ અભિમાન છોડ દેહી અભિમાની બનો. મારા શરીરનું અભિમાન છોડીને આત્મા અભિમાની બનો. કારણ કે આત્મા અભિમાની બનીશું તો જ રૂહાની યાત્રા કરી શકીશું. રાવણને આધા કલ્પ સે તુમ્હે દેહ અભિમાની બનાયા. અબ આત્મા અભિમાની બનો. કારણ કે દ્વાપર કલયુગમાં કેવા હતા? દેહ અભિમાની હતા, શરીરનું અભિમાન હતું. હવે કેવા બનવાનું છે? આત્મા અભિમાની. यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूही तुम्हें देता और कोई दे ન શકે. અને આ જ્ઞાન એક પરમાત્મા આપે છે અને પરમાત્મા સિવાય કોઈ આપી શકતું નથી. ગીત છે ओम नमः शिवाय. ओम शांति. बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी. ओम नमः शिवाय ગીતમાં પરમાત્માની મહિમા છે. તો બાબા કહે છે બચ્ચોએ પરમાત્માની મહિમા સાંભળી. ગાયા ભી જાતા હૈ ઊંચતે ઊંચ ભગવાન વહ હૈ સબ બચ્ચો કા બાપ. ઊંચામાં ઊંચા ભગવાન માના નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્મા છે કે જે સર્વ મનુષ્ય આત્માઓના પિતા છે. બાકી જો ભી હૈ आपस में सब ब्रदर्स है और सबका बाप भी एक है. આપણે બધા શું છીએ આપસમાં? આપસમાં ભાઈ ભાઈ છે. કેમ કે આપણા સૌના આત્માઓના પિતા એક નિરાકાર પરમ પિતા પરમાત્મા છે. વહ હૈ શિવ બાબા. बाप ने समझाया है हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप. ભક્તિ માર્ગમાં કેટલા પિતા હોય છે? બે પિતા. એક હોય છે શરીરના પિતા, એ લૌકિક પિતા, અને બીજા છે આત્માના પિતા એટલે કે પારલૌકિક પિતા. રચયિતા સે રચના કો વર્ષા મિલતા હૈ. રચયિતામાંના શિવ બાબા. આપણે બધી એમની રચનાઓ છીએ. તો રચયિતાથી રચનાને વારસો મળે. જેવી રીતે શરીરના પિતા આપણા શરીરને જન્મ આપે છે, તો જે હદની સંપત્તિ હોય છે, હદનો વારસો હોય છે, એ હદના પિતા પાસેથી મળે છે. વહ હૈ હદ કા વર્ષા और यह है बेहद का वर्षा. बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है.
वह है निराकार, उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। बेहदना पिता माना अपनी आत्माना पिता छे निराकार परम पिता परमात्मा शिव के जेमनी पासेथी बेहदनो वारसो मळे छे। कहते भी है शिव परमात्माए नमः, वह है ऊंच ते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ, वह रहते हैं परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। હવે પરમાત્મા ક્યારે છે એ બતાવ્યું છે। તો પરમાત્મા છે એ સર્વ આત્માઓના પિતા છે। સૌથી ઉપર સૌથી ઊંચા એ નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્મા છે, જેમનું નામ શિવ છે। અને જ્યાં નિરાકાર પરમાત્માની તરફ આપણી બુદ્ધિ જતી હોય છે, અને એ ક્યારે છે? પરમધામમાં। પરમધામથી જ્યાંથી આપણે આત્માઓ सृष्टि पर आविए छे। बाप भी वहाँ रहते हैं, वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। परमात्मा परमधाम निवासी छे, परंतु भारत भूमि ए निराकार परम पिता परमात्मानी अवतरण भूमि छे। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। शिव बाबा ने कई टाइटल आप्यो? बाबा ने आपणे शुं कहीए छीए? ज्ञानना सागर, पतित पावन, लिबरेटर माना मुक्तिदाता, गाइड माना जीवन ने मार्गदर्शन आपवावाळा, माना जीवन मुक्ति कई रीते मळे, परमधाम कई रीते जई शके, सत्युगी वारसो कई रीते मळे एनो वारसो आपे छे। वही दुख हरता सुख करता है, यह भारतवासी जानते, कारण के भारतवासीओना पिता छे, तो भारतवासीओने खबर छे कि निराकार परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता छे। यह दुख धाम है, भारत ही सुखधाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। परमात्मा आवीने बाळकोने समझावे छे कि हूँ भारत भूमि पर दिव्य अवतरित थईने तो आવું છું। भारत मारी जन्मभूमि छे, तमे मारी जन्म जयंती ने पण मनावो छो। हूँ लिबरेटर छूँ, पतित पावन छूँ, गाइड छूँ, ज्ञानना सागर छूँ, दुख हरता सुख करता बधुं ज छूँ। परंतु आ भारत भूमि में, भारत भूमि पर ज्यारे स्वर्गीय दुनिया होय छे, तो ए दुनिया में तमे विश्वना मालिक हता कि ज्यारे आदि सनातन देवी देवता धर्म हतो। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। धर्म माना धारणा, धारणा एटले के उच्च ज्ञाननी धारणा। तो सतयुग में हरेक मनुष्य आत्माओ ज्ञान थी संपन्न थी, ज्ञान जानती नथी, परंतु संगम युगनो ज्ञाननो वारसो लईने गयेली हती। एटले ए आत्मा सद्गुणोथी संपन्न हती, तो एमनो धर्म श्रेष्ठ हतो, अने ए सद्गुणोना आधारे जे कर्म करता हता, तो ए कर्म बी श्रेष्ठ हतो। पण अत्यारे तो धर्म बी भ्रष्ट छे, तो कर्म भी भ्रष्ट थई गयुं छे। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते, कारण के अपनी धारणाओं ज भ्रष्ट छे, कर्म ज भ्रष्ट छे, विचारो ज भ्रष्ट छे वर्तमान समये। तो वर्तमान समय मनुष्य देवी देवता कई रीते कहेवाय? कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति। ज्ञान थी शू मळे छे? सद्गति।
सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक न आए तब तक सद्गति हो न सके। मनुष्य आत्माओने सद्गति क्યાં સુધી નહીં મળે? જ્યાં સુધી સ્વયં પરમ પિતા પરમાત્મા સૃષ્ટિ પર આવતા નથી ત્યાં સુધી કોઈને પણ સદ્ગતિ મળતી નથી। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भले सन्यासी पवित्र बनते हैं परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना पड़ता है। कारण के आ दुनिया ज पतित छे, पावन कोई छे नहीं। कारण के विकारीओथी जन्म मेळेलो होय छे। सन्यासीओ घर बार छोड़ीने जंगल में जाय छे तो ब्रह्मचर्य व्रतनुं पालन तो करे छे। तो एना माटे बाबाए कह्युं सन्यासी भले पवित्र रहे छे परंतु बीजो जन्म तो विकारीओना घर में ज लेवो पड़े छे। विष से जन्म लेना पड़ता है, वापिस जाने का तो है नहीं। वच्चेथी कोई पाछू जई शकतो नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। જ્યારે આ સૃષ્ટિ ચક્ર પૂરું થાય છે ત્યારે स्वयं परमात्मा आवीने लई जाए छे। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। सुप्रीम रूह माना परम पिता परमात्मा कि जेओ ज्ञानना सागर पतित पावन छे। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। शास्त्रों ज्ञान शुं छे? भक्ति मार्ग। परंतु ज्यारे स्वयं परमात्मा आवीने जे ज्ञान आपे छे ए छे सुप्रीम ज्ञान, रूहानी ज्ञान के जे सुप्रीम फादर आवीने आपे छे। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। भक्ति मार्ग में शू कर्यु? यज्ञ कर्यु, तप कर्यो, उपवास कर्यो, उपनिषदों वांच्या, तीर्थों पर फर्या, परंतु शू थयुं? द्वापर थी कलयुग में ज आवे ने। द्वापर थी कोई सतयुग त्रेता में तो गया नहीं। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रोस्परिटी भी थी। भारत भूमि पर ज्यारे पवित्रता हती त्यारे शांति भी हती अने समृद्धि भी हती। हेल्थ वेल्थ दोनों थे, माना शरीर नी तंदुरस्ती पण हती तो धन थी पण समृद्ध हता। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था। आज थी 5000 वर्ष पहला आ भारत भूमि ए स्वर्गीय दुनिया हती। उस समय और कोई धर्म नहीं था। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सके। कारण के जेवुं सतयुगी दुनियानो आपणे चित्र जोईए छीए, कल्पना करिए तो एवा चित्रनी रचना तो कोई मनुष्यना हाथनी वात ज नथी। कोईनी ताकत ज नथी के एवुं चित्र बनावी शके। तो एवुं ऊंचामां ऊंचुं चित्र सतयुगी दुनियानी रचना तो एक स्वयं परमात्मा ज करी शके छे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कृष्ण रचयिता है। नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी सब है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। रचयिता तो एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव छे, बाकी सब मनुष्य आत्माओं एमनी रचना छे। तो बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए।
શિવ બાબા આપણી આત્માના પિતા છે અને આપણને બેહદનો વારસો આપવા માટે આવ્યા છે કે જેની કોઈ હદ નથી, કોઈ લિમિટ નથી. અને એ બી વારસો કેટલા જન્મો માટે? 21 જન્મો માટે. सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ. ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी बाप, रूहों को आप समान बनाते हैं. સૌથી ઊંચામાં ઊંચું કોણ છે? આત્માઓના પિતા કે જે આત્માઓને ઊંચા બનાવે છે પોતાના જેમ. बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं. કારણ કે બાબા 2 દિવસથી આપણે શું શીખવાડે છે? બાપ સમાન બનો, બાબાના જેવા બનો. તો બાબા જેવા જ્ઞાનના સાગર છે, સુખના સાગર છે, આનંદના સાગર છે, શાંતિના સાગર છે. તો બાપ સમાન બનો. भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है. बाप कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है. सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है. સતયુગના આદિથી આ કળયુગના અંત સુધીની જે હિસ્ટ્રી જ્યોગ્રાફી છે, જે આ સૃષ્ટિ ચક્ર બનેલું છે, તો એ માત્ર ભારત ભૂમિ ઉપરનું જ બનેલું છે. યહ લક્ષ્મી નારાયણ કિતને હેલ્ધી વેલ્ધી થે. સતયુગમાં જે લક્ષ્મીનારાયણ હતા એ કેટલા હેલ્ધી વેલ્ધી હતા, કભી બીમારી નહીં પડતી थी. अभी काल पर विजय पाने शिक्षा ले रहे हैं. અને અત્યારે તો જુઓ બીમારી કેવી છે, અને એવી બીમારીમાં કેવી અકાલે મૃત્યુ થતી જાય છે. તો બાબા કહે છે સતયુગમાં જે લક્ષ્મીનારાયણ હતા એ તો ક્યારે બીમાર નહોતા પડતા, કારણ કે એ વર્તમાન સમય અત્યારે કાલ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं. नाम भी सुना, शिवाय नमः. परमात्माનું નામ કયું સાંભળ્યું? શિવાય નમઃ. તો એ પરમાત્મા એ કાલોના કાલ મહાકાલ છે અને સ્વયં મહાકાલ આવીને આપણને કાળ ઉપર વિજય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરો એ શીખવાડે છે. तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है, इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि. બાબા કહે છે તમે એવું નહીં કહી શકો કે પરમાત્મા સર્વવ્યાપી છે, કારણ કે ભક્તિ માર્ગમાં તો લોકો શું કહે છે? भगवान सर्वव्यापी છે. कुत्ते बिल्ली ठीकर भीतर सब में भगवान है. तो बाबा કહે છે આ તો મોટામાં મોટી ધર્મગ્લાની છે, પરમાત્માની નિંદા છે. बाप की ग्लानि करते हैं. अभी यह है कल्प का संगम समय, इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है. अब विनाश तो सामने खड़ा है. गीता में भी लिखा है यादव कौरव पांडव क्या करत भय. सर्वशास्त्रोमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है. ભગવદ્ ગીતાની અંદર શું લખ્યું છે? વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ. તો અત્યારે તો વિનાશનો સમય છે. તો મનુષ્યની બુદ્ધિ કે જે ભગવાનને સર્વવ્યાપી માને છે, જે ભગવાનની ગ્લાનિ કરે છે, તો એ કેવા કહેવાશે? વિપરીત બુદ્ધિવાળા. પછી બાબા કહે છે ગીતામાં બી યાદવ કૌરવ પાંડવ બતાવ્યા છે અને છેલ્લે બધું યુદ્ધ બતાવ્યું છે, ધર્મ સ્થાપના બતાવી છે અને છેલ્લે શું કહ્યું છે? યાદવ કૌરવ પાંડવ ક્યાં કરત ભાઈ. માના જે તમે મહાભારતનું ધર્મશાસ્ત્ર જુઓ કે મહાભારત જુઓ તો એમાં બતાવ્યું કે યાદવો લડ્યા, કૌરવો લડ્યા, પાંડવો લડ્યા, પણ આખીરમાં શું મળ્યું એમને? જે લડ્યા એમને તો કંઈ મળ્યું જ નહીં. કૌરવ મૃત્યુ પામે, પાંડવોએ થોડો સમય રાજ્ય કર્યું, પછી તો શું કર્યું?
હિમાલય ઉપર ચડતા 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 સ્વર્ગની સીડી, એમ સ્વર્ગારોહણ કરી લીધું એમ બતાવ્યું છે. અને યાદવો તો બતાવ્યા છે કે અંદરો અંદર લડીને મૃત્યુ પામે. તો શું કરીને ગયા? तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र. बाप कहते हैं मैं आता हूँ, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर से देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो. बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो. सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते जो पहले पहले सतयुग में आते. સૌથી વધુ જન્મ કોના હશે કે જે સતયુગ આદિથી આ સૃષ્ટિ પર આવે છે. મેક્સિમમ 84 જન્મ લીએ હે. तुम ભારતવાસીઓને વધુમાં વધુ કેટલા જન્મ છે? 84. અને ઓછામાં ઓછા 1 જન્મ. यह भी बाप बैठ समझाते हैं. बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता. शिव बाबा वगर कोईने पण ज्ञानना सागर कहवाय नहीं. पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है. बाप ही सबको लिबरेट कर वापिस ले जाते हैं. सर्व का सदगति दाता बाप एक है. सर्व मनुष्योना सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक परमपिता परमात्मा छे. अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? सदगति तो परमात्मा करावे छे, तो दुर्गति कई रीते थाय छे? कौन करता है? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है. तो दुर्गति कौन करावे छे? तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ. तुम बच्चे सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो. स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को पता नहीं है. कारण के स्कूल में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी भणीए छे क्यांथी लईने भणीए छे? हाँ, ए तो सतयुग त्रेतानुं तो कोई ज्ञान ज नथी आवतुं. अने बाबा आवीने हिस्ट्री ज्योग्राफी भणावे छे तो संपूर्ण 5000 वर्षनुं चक्रनुं ज्ञान आपे छे. चित्र तो बराबर है, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे. कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो? चित्र तो बराबर छे, लक्ष्मी नारायण सतयुगना राजा महाराजा छे, ए सतयुगमां राज्य करता हता, परंतु एमनी राजधानी केटलो समय चाली ए कोई जणावी शके छे? क्रिश्चियन डिनायस्टी 2000 साल चली. बौद्ध डिनायस्टी इतना समय चली. इस्लामी उनके आगे. फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले. तो बाबा कहे छे कि लक्ष्मी नारायणनी डिनायस्टी केटलो समय चाली ए कोई बतावी शकतो नथी, जे बाबा आवीने बतावे छे. सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थी और कोई धर्म नहीं था. तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो. अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी. ब्राह्मण वंशी सो सूर्यवंशी चंद्रवंशी, क्योंकि ब्राह्मण बने छे एज सतयुग में सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने छे. यह सारा नाटक भारत पर ही बना है. भारत ही हेल और हेवन बनता है, और धर्म वालों के लिए यह नहीं कहेंगे. वह तो हेवन में होते ही नहीं, કારણ કે બીજા ધર્મની આત્માઓ કોઈ સતયુગમાં આવતી જ નથી. તો એમના માટે કોઈ સૂર્યવંશી ચંદ્રવંશી કહેવાતું નથી. कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं
नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़ता है, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही जन्म लेंगे। અત્યારે તો હરેક મનુષ્ય આત્માઓ કેવી છે? કલયુગમાં છે, નર્કવાસી છે, તો જન્મ તો નર્કમાં લેશે। तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। अगर सृष्टि चक्र लाखों वर्षનું હોય तो लाखों वर्षની कोई ज्ञान तो याद रही ना सके। सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं है, यह सारी भक्ति की सामग्री है, सीढ़ी नीचे उतरनी है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतो प्रधान माथी सतो रजो तमोમાં આવવું, સીડી નીચે ઉતરવી અને એમાં આખું ચક્ર ફરતા ફરતા 5000 વર્ષ લાગે છે। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी है, कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाई पड़ी। इस समय तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। सतयुगમાં મનુષ્ય આત્માઓ કેવી હોય છે? 16 કળા સંપન્ન। ત્રેતાયુગમાં 2 કલા કમ થઈ ગઈ તો 14 કળા થઈ ગઈ। આત્મામાં સોનામાં ખાંડ પડી તો ચાંદી બની ગયા, પછી ચાંદીમાં એક ખાદ પડી તો કોપર એજમાં આવી ગયા, કોપરમાં એક ખાદ પડી તો આયરન એજમાં આવી ગયા અને એમાંય ખાદ પડતા પડતા બિલકુલ તમો પ્રધાન બની ગયા છે। તો आत्मा में ही खाद पड़ती है, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अपनी आत्माना पिता आवीने आपने आ ज्ञान समझावे छे। तुमको अब आत्मा अभिमानी बनना है। रावण की प्रविष्टा होने से सब देह अभिमानी बन गए हैं। कलयुगમાં આવતા આવતા રાવણની પર પ્રવેશતા થઈ તો દેહ અભિમાનમાં આવી ગયા। હવે બાબા કહે છે આત્મા અભિમાની બનો। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। હવે 84 जन्मों चक्र पूરું થયું। अब तो शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया है। शरीर भी केवुं થઈ ગયું છે? जड़ जड़ीभूत થઈ ગયું છે। द्वापर में रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। द्वापर में कोनु होय छे? द्वापर कलयुग रावण राज्य, सतयुग त्रेता राम राज्य। तो सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थी, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन गए। सतयुग में स्थिति केवी हती? आत्मा अभिमानी स्थिति। कलयुग में आवता आवता तो संपूर्ण देह भान में आवी गया छे। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थी, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है। आत्मा केवुं छे? एक चमकता सितारा जेवी। भ्रुकुटी के बीच में है चमकता अजब सितारा। आत्मानुं निवास स्थान क्या छे आ शरीरनी अंदर? तो भ्रुकुटीनी मध्यमां एक सितारो चमकी रह्यो छे। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। ने आत्मा ने दिव्य दृष्टि सिवाय जोई शकाती नहीं। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेजफुल कहा जाता है।
પહેલા આત્માનો પરિચય આપ્યો કે આત્મા બિંદી છે, ભ્રુકુટીના વચ્ચે મધ્યમાં ચમકતો એક સિતારો છે, બિલકુલ સૂક્ષ્મ છે, એક શરીર છોડીને બીજું શરીર ધારણ કરે છે, એમ 84 જન્મો લે છે. તો એવી રીતે પરમપિતા પરમાત્મા બી કેવા છે? બિંદુ છે, જેઓ જ્ઞાનના સાગર છે, પતિત પાવન છે. परमपिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है. बीज रूप होने के कारण उनको सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है. शिव बाबा बीज रूप છે માટે એમને કેવા કહેવાય છે? સત चित आनंद स्वरूप. बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनना पड़े क्योंकि यह है स्पिरिचुअल नॉलेज. शिव बाबाની અંદર જે જ્ઞાન છે તો બાબા કહે છે જરૂરથી સાંભળો, કારણ કે આ જ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं. આત્માના પિતા આવીને આત્માઓને જ્ઞાન આપે છે કે तुमको आत्माभिमानी बनना है. કયું જ્ઞાન આપે છે? आत्माभिमानी बनो. शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है. बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं. यह सृष्टि चक्र का राज कोई भी मनुष्य नहीं जानते. બાબા આવીને સ્વર્ગની રચના રચે છે અને આપણને સ્વર્ગના લાયક બનાવે છે. बाप को ही न जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है. ભારતની આ પરિસ્થિતિ કેમ છે? કારણ કે ભગવાનને જ નથી ઓળખતા. ભગવાન કોણ છે, ક્યારે છે, આવીને શું કરે છે, ભગવાનનું દિવ્ય કર્તવ્ય શું છે, તો ભગવાન વિશેની જ માહિતી નથી અને ભગવાનને સર્વવ્યાપી કહી દે છે. તો બાબા કહે છે કે મારી જ ગ્લાનિ કરી દીધી. માટે ભારત ભૂમિની આવી સ્થિતિ છે. भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, माना पवित्रता थी तो शांति और समृद्धि भी थी. अब भी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं. અત્યારે છે નરકીય દુનિયા, તો કોઈ સ્વર્ગમાં કઈ રીતે જઈ શકે છે? બિલકુલ ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं. કેવા થઈ ગયા છે? एकदम पत्थर बुद्धि. बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा. બાબા કહે છે હું જ્યારે આવીશ તો બાળકો માટે કોઈ ના કોઈ ભેટ તો લઈ આવીશ. तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ. બાબા કઈ ભેટ લઈને આવ્યા છે? સ્વર્ગીય દુનિયા લઈને આવ્યા છે આપણા માટે गिफ्टમાં. तो जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे. જેને 5000 વર્ષ પહેલા સત્યુગી દુનિયાનો વારસો લીધો હતો એ જ લેશે. મનુષ્ય से देवता बनेंगे. वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं. अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं. ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं. शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है. कयो पुरुषार्थ करवानो छे? शिव बाबा पासेथी वारसो मेळववानो. तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है. वारसो मेळवવો હોય તો કેવા બનવું પડશે? सतो प्रधान बनવું પડશે. तो बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो. सतो प्रधान बनवा માટે બાબા રસ્તો બતાવે છે કે શું કરવાનું છે. तो बाबा કહે છે बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे. यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता. અને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સિવાય નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્માના બીજું કોઈ આપી ન શકે. रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं. तुम रूहानी यात्रा करते हो. देह अभिमान को छोड़
દેહી અભિમાની બનતે હો. અને હવે આપણે જે યાત્રા કરીએ છીએ એમાં શરીરના ભાનને ભૂલી આત્મ અભિમાની બનીએ છીએ. आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है. आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है अब मालूम पड़ा है. हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है. अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं. तो बाबाए सतो प्रधान बनवानी कई शिक्षा आपी छे? एक मंत्र आप्यो छे, मामेकम याद करो. माना मन पोताने आत्मा समझी बाबाने याद करो. भगवान उवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण. कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है. कृष्णनी आत्मा શું શીખી રહી છે? સતો પ્રધાન કઈ રીતે બની શકાય અને કૃષ્ણની આત્મા પણ આ જ્ઞાન લઈને પોતે સતો પ્રધાન બની રહી છે. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी यात्रा करनी और करानी है. रूहानी माना पोताने आत्मा समझी मन बुद्धि थी आ देह थी उपराम स्थिति बनावी परमधाम पहुंची शिव बाबा ने याद करवा. स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है. आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है. आत्म अभिमानी बनवानो पूरेपूरो पुरुषार्थ करो. काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है. बाबाए कई शिक्षा आपी छे? आत्म अभिमानी बनो. काल ऊपर विजय प्राप्त करवो होय तो आत्म अभिमानी बनो और मामेकम याद करो. अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है. आत्माओने ज्ञान आपवानुं छे पण केवी रीते? पहला पोताने आत्मिक स्थिति में स्थित करो, आत्मा समझो, पछी आत्माओने ज्ञान आपो. वरदान, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव. जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं. बाबा कहे छे जेवी रीते बीज होय तो बीजनी अंदर आखा वृक्षनो सार समायेलो होय छे, एवी रीते आ संगम युगमां अगर आपणी स्थिति आवाजथी परेनी स्थिति छे तो ए स्थिति दरमियान संगम युगना जे बधा ज विशेष गुणों छे ए अनुभवमां आवे छे. तो मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शक्ति नहीं, लेकिन साथ साथ शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना. तो बाबाए कह્યું मास्टर बीज रूप बनવું એટલે શું? એકલી શાંતિની અનુભૂતિ નહીં, પરંતુ જે મુખ્ય 7 ગુણો છે એ 7 गुणों अनुभव करवो. यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है. અને આ બધા જ ગુણોનો અનુભવ આપણે એકલાય નથી કરવાનો, પણ આપણા ચહેરા દ્વારા
अनेक आत्माओं आ सर्व गुणों नो अनुभव करें। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। अने कयो गुण छे एक गुण? तो बाबाए कह्युं आवाजथी परेनी स्थितिमां स्थित रहो। स्लोगन, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। बाबा कहे छे कोईनी अंदर सारा गुणों छे तो जोया तो ए सारा गुणों, एमनी सारी जे वस्तुओं छे, एमनी सारी आवड़त छे, तो ए सद्गुणोने आपणी अंदर धारण करो, परंतु एने जोईने एमां प्रभावित नहीं थई जाओ। अच्छा, ओम शांति। अंत में छे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिनका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। કેટલું સરસ મહાવાક્ય છે। વર્તમાન સમયની પરિસ્થિતિ અનુસાર અગર કોરોનાની બીમારીમાં કોઈ ડરતું હોય, કોઈ ટેન્શનમાં હોય, તો બાબા કહે છે આ લાઈન યાદ કર દો मारा मत प्रमाणे कि जिनका साथी है भगवान उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। परंतु पाक्को निश्चय जोईए। साथी तो बधाए भगवान ने बनावी दीधा छे, पण भगवान उपर संपूर्ण निश्चय, संपूर्ण विश्वास कि मारा जीवननी डोर परमात्माना हाथमां छे, हवे एमने चलावવાની છે, तो संपूर्ण जवाबदारी भगवान ने आपी दो। पछी जुओ तो जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है। न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर तो वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों। आ गीत द्वारा परमात्मानो परिचय आप्यो छे कि परमात्मा ने आत्मा बने एक नहीं, बने अलग अलग छे। कारण के कहे कि जिसका साथी है भगवान, तो आपड़ा साथी भगवान छे, आपणी अंदर कोई भगवान नहीं। मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों है? परमात्मा तो सुख स्वरूप है। तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख रूप। अगर भगवान हाजिरा हजूर होए तो दुनिया केवी होवी जोईए, सुख स्वरूप के दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा। अत्यारे सर्वव्यापी कौन छे? परमात्मा के माया? तो बाबा कहे छे माया सर्वव्यापी छे, परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। परमात्मा हरेकनी अंदर विराजमान नहीं, परंतु परमात्मानी याद ए हरेकना दिलोमां छे। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हरेक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। આપણે ભગવાનને સાથી બનાવે ને, તો પરમાત્માનો સાથ કેમ લીધો છે? इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए परमात्मा ने साथी केम बनाव्या छे? मायाना आंधी अने तूफानमांथी पार जवा माटे। तो जरूर कोई माया का तूफान है जिससे पार होने के लिए परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। कितनी सरस बात है कि अगर भगवान हाजिर होता, माना भगवान सर्वव्यापी होता, तो माया होई ज ना शके, अने मायानी उलझन होई ज ना शके, तो भगवान ने याद ज ना करवा पड़े। तो हम आत्माएं और परमात्मा
दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे। मायाना तूफानोમાંથી મુક્તિ ક્યારે મળશે? તો પરમાત્મા આવ્યા છે તો પરમાત્માનો સાથ લઈને એમના પૂરા બની જાઓ। बल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। तो बाबा कहे छे कि આપણે તો પરમાત્માનો હવે જ્ઞાન મળ્યું છે તો પ્રેક્ટિકલમાં એમનો સહારો લેવાનો છે તો સાથ મળશે। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। बल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवंत दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ ही नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। કેટલી સરસ વાત કરી કે બાબા આ દુનિયામાં આવ્યા છે, પરંતુ બાબાને ન જાણવાના કારણે એમને કોઈ સાથ નહીં લઈ શકતો। અગર ઇनको પૂરા પકડ લે તો બાબા મદદ કરવા માટે મશહૂર છે। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो बाबा કહે છે કે તમે એક કદમ તો વધો तो 10 कदम आगे आवीश। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। तो बाबा संपूर्ण वारसो आपवा माटे आव्या छे कि जेमां थोड़ी पण कमी नथी, परंतु एमने प्रेक्टिकलमां आपणे एमनो साथ पावानो छे, प्रेक्टिकलमां एमने आपणा सहारो बनावी दो। अच्छा, ओम शांति।